Yesterday we have seen about the some questions of light, refraction, also reflection. Today also we will be continuing that. First, let's see the question. Thirteen participants have joined. In quiz only, I am seeing 8 participants out of total 13. Why others are not joining? 3 महीने बचे हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है. 3 महीने में अच्छे मार्क्स. अब ज्यादा मस्ती नहीं, मस्ती होगी लेकिन ज्यादा नहीं, क्लास में बिल्कुल नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted, and larger than the object. Where is the object placed? The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted, and larger than the object. Where is the object placed? Last 1 minute. One answer I have got. Last 10 seconds. So let's see the correct answer. Between the focus and center of curvature. So first answer is, I think, pure copy paste. Third answer is also copy paste. One answer I am incorrect. So only one has written on its own. Others have done the copy paste or wrong. Let's see the result. Again, I am saying if you will do copy paste, you will not get marks. Only Khushi has typed the answer out of 7 participants. Let's move to the next. Yesterday also we have seen the diagram. This is the diagram. Draw the diagram in your copy, that where the object will be placed. Okay. If the object is placed between the focus and center of curvature, we can see the image, how it is going after it reflects from the concave mirror. Okay. So draw this diagram. First, the object image will go parallelly to the principal axis. This BD, this
is parallel. Okay, this is parallel, and after striking, it passes through focus. After striking, it passes through focus and then forms an image. And one more ray that goes through image top in upward direction, and after hitting the mirror, it comes back to the downward direction. Okay, so you can see the arrows there. You can see there the arrows. It is in both the direction, going upward and going downward. So two rays passes from the object. One goes parallelly and one goes, you can say, diagonally to point E. So one goes to point D parallelly and one goes to point E diagonally. And after hitting from D point, it comes diagonally passes through focus to the image, and other, after hitting the mirror at point E, it again comes back to the image to form an image. So draw this diagram and comment after drawing that you have completed, so we can move to next question. This arrow is actually object. Okay, this arrow is only object, and here we got image. So if it is written b dash a dash, you can write here also ab. Okay, b is written, you can write a here, a. So ba is object and b dash a dash is image. If arrow is pointing towards a, then in image also the arrow will be pointing towards a dash. Done everyone? Astha has completed. बाकी लोग का हो गया? Okay, let's move to next. Question number 2 on your screen. Again, I am seeing only 5 participants. सिर्फ 5 स्टूडेंट दिख रहे हैं. Total 12 students हैं. So question number 2 on your screen. Name the part of lens through which a ray of light passes without suffering any deviation. Name the part of lens through which a ray of light passes without suffering any deviation. Total time 30 seconds, जिसमें से अभी 15 बचे हुए हैं. अभी तक आंसर नहीं आया है एक का भी. जल्दी करो. लास्ट 10 seconds. Time's up. So let's see the answer. The correct answer is optical center. क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा रे ऑफ लाइट जब जाता है तो कौन से पार्ट से जाएगा कि वो डेविएट नहीं होगा, वो कहीं भी इधर से उधर मूव नहीं होगा. So the correct answer is optical center. I have got 2 and 1, 3 answers correct out of 4. सिर्फ 4 लोगों ने ही आंसर दिए. Let's see the leaderboard. Okay, so this time again खुशी, तरु, गौरव, ये 3 लोग ही आंसर दे पाए हैं सही. रेस्ट ऑल द बेस्ट, कोई बात नहीं. राज फिर से ट्राई करो एक बार और कैंसिल करके. कोड सेम है कल वाला, इजीली ज्वाइन हो जाओगे. सो ये है डायग्राम. यहां अगर आप देखोगे जो बात हो रही थी कि जो रेज है, सपोज करो रेज यहां से आ रही है, आने के बाद वो कहीं भी डेविएट नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि वो टकराने के बाद इधर चली जाएगी
या फिर कहीं और चली जाएगी, ऐसे, ऐसा नहीं, ठीक ना। वो जो रेज है, वो रेज बिना डेविएशन के सीधे सीधे आ रही थी, सीधे सीधे जाएगी। ओके, सो दैट वी विल टर्म एज नॉन डेविएटेड रे। ओके, अब वो जो नॉन डेविएटेड रे है, उसी को हम कहां से पास करती है, वो ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर? तो ये जो एरिया है, ये बीच का, ये है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हम कोऑर्डिनेट्स जब हम बनाते हैं तो जो ओरिजिन हम रखते हैं 0 0 पे, वो भी एक हिसाब से ऑप्टिकल सेंटर है, क्योंकि एक हमारा एक्स एक्सिस है और दूसरा अगर हम यहाँ बीच से बनाते हैं इमेजनरी, ऐसे बनता नहीं है, इमेजनरी अगर हम बनाते हैं तो ये बनेगा हमारा वाई एक्सिस। तो ये जो बीच का होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर या फिर ओरिजिन। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्टिकल सेंटर ऐसी जगह है जहां से जब रेस पास होती है, ठीक ना, तो बिना किसी डेविएशन के उसी डायरेक्शन में वो क्रॉस कर जाता है। Let's move to next, mirror formula. Now, what is mirror formula? Mirror formula is simple, 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u. और uv क्या होता है? हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे, ओरिजिन से कितनी दूरी पे, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं u और v। जैसे फिजिक्स क्लास 9 में हमने पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ जो u और v है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। u ऑब्जेक्ट के लिए, v इमेज के लिए। क्लियर? तो मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। उसके बाद सेम इसी के जैसा आता है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन डायरेक्ट क्यों आया? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है u और v के साथ। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं उसकी हाइट कितनी होगी, अगर हमको नहीं पता कि हाइट कितनी है तो डिस्टेंस पता है मिरर फॉर्मूला से कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से इतनी दूरी पे रखा हुआ है। वो जो इमेज फॉर्म हो रहा है, जो हमको इमेज मिल रहा है, परछाई जो दिख रही है वो मिरर में, उसका इमेज का वो कहाँ दिख रही है, तो वो इतनी दूर पे दिख रही है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, दिख और दूर पे रही है। हो सकता है कि दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग अलग। तो उसको भी अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो भी हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा। मैग्निफिकेशन वो जानते हो ना, मैग्निफिकेशन एक ग्लास आता है वो। तो वो जो मैग्निफिकेशन है वो हाइट से भी पता चल जाता है और डिस्टेंस से भी पता चलता है। ठीक, तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला ये है और मैग्निफिकेशन, ये जो पूरा मैग्निफिकेशन है इसका फॉर्मूला हाइट के टर्म्स में भी है और लेंथ के टर्म्स में भी है। लेंथ इन द सेंस कि डिस्टेंस जो हमारा है। तो इसको लिख लो कॉपी पे, लिखने के बाद मैसेज करो, हो जाएगा तो। मिरर फार्मूला, उसके नीचे वो 1 अपॉन एफ वाला फॉर्मूला लिख लेना। उसके बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के नीचे 3 फॉर्मूले आएंगे, मतलब 3 बार लिखना है। एक बार हाइट ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट लिखना है। उसके नीचे एच आई। एच आई एक्चुअल में एच आई 2 लेटर्स नहीं है, एच उसके नीचे में छोटा सा है, मीन्स वो इमेज का हाइट बता दें। ठीक ना, जब हम लिखेंगे कॉपी में तो ध्यान देना, हमने एच लिखा और उसके बाजू में छोटा सा हम आई लिख देंगे। ठीक ना, फिर हमने एच लिखा, उसके बाजू में छोटा सा हम ओ लिख देंगे। ठीक, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
अभी भी 7 स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं मेरे को आउट ऑफ 14। आउट ऑफ 14 मेरे को सिर्फ 7 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अब 9 हुए। चलो लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 12 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो अपने को इमेज का डिस्टेंस पता लगाना है, ठीक ना। टोटल टाइम 2 मिनट्स। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, v का निकालना है, ठीक है ना। उसके साथ साथ अपने को नेचर भी बता देना है। वन आंसर आई हैव गॉट, 90 seconds left. Last 60 seconds, 1 minute left. Last 40 seconds. Seven answers I have got. Very good. हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं चेक नहीं करूंगा, देखने से पता चल जाता है क्योंकि 150 वर्ड्स में कॉपी पेस्ट के आंसर्स नहीं आते। ओके, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v, दैट इज इमेज का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर पे होगा, और जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, टेढ़ा छोटा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स सी 24, 15, 24 गलत। नेचर इज वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन डिस्टेंस तो बताया नहीं। चलो नेचर पे मार्क्स दे देते हैं। 30 नहीं, -60, मतलब एक ही 60 आया है, वो भी माइनस में। कोई बात नहीं, इसको भी दे देते हैं। तो दो आंसर ही ठीक ठाक दिख रहे हैं। लेट्स सी द लीडर बोर्ड, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। This time I think Taru will get the first position with Gaurav and Khushi. So both three are on top. बाकी लोग कोई बात नहीं, होगा होगा, अभी पढ़े हैं, हो जाएगा। ये है सॉल्यूशन, बाकी लोग लिखेंगे u इक्वल्स टू f इक्वल्स टू, सिमिलर वे में हमको v की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनी है, ठीक ना। तो मिरर के पीछे बनी है, दैट मीन्स जो टोटल है वो 60 कैसे होगा, आगे से 30 पीछे से 30, वो टोटल 60 होगा। और इमेज जो है वो वर्चुअल है क्योंकि वो दिख रही है, रियलिटी में नहीं है वो। आईने के पीछे तो हम नहीं देख सकते। तो टोटल जो 60 आ रहा है दैट मीन्स वो सामने से 60 और पीछे से सामने से 30 और पीछे से 30, तब वो जाके 60 हो रहा है। क्योंकि आईने के पीछे भी इमेज बनता है, लेकिन वो हम उसको इमेजिनरी मानते हैं, इसलिए तो नाम है इमेज। इमेज और इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स जो सिर्फ सोचा जा सकता है, इमेज मीन्स टकरा के जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं, वो इमेज मतलब दिखाया जा रहा है, वो रियल नहीं है। मैग्निफिकेशन भी यहाँ निकाल लिया है, मैग्निफिकेशन निकला है +6,
हम अगर वो वैल्यू रख दें u और v का, तो 60, और जब हम रखेंगे, मेरे ख्याल से u की वैल्यू इसने गलत रखा है, u की वैल्यू 12 आएगी, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक ना, उसको करेक्ट कर लेना। u की वैल्यू हमारे पास 12 है और v की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो मैग्निफिकेशन 5 है। ठीक ना, तो वो कितना मैग्नीफाइड होगा? 5। और पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स इमेज जो है वो सीधा है। लिखना हो जाएगा तो बताना। ओके, तरु का हो गया। एम में एक चेंज कर लेना, एम में वो यू की वैल्यू, एक मिनट में यहां से भी चेंज कर देता हूं। मैं बाद में करूंगा, यहाँ बस मैं ये जो है, ये 10 -10 की जगह -12 रखना, या अगर दोनों में माइनस नहीं रख रहे हो तो भी चलेगा, 60 और 12 रखना। तो उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। ठीक, क्योंकि ये जो 1/60 आई थी, ये 1/v की वैल्यू है, 1/v इज इक्वल टू 1/60 था, तो हमने फिर उसका रेसिप्रोकल किया। ठीक ना, जब रेसिप्रोकल किया तो v इज इक्वल टू 60 आ गया, मतलब वो v/1 हो गया और इधर 60/1। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिर से 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 18, जल्दी जल्दी ऐड हो। 8, अभी 9 थे, 9 हुए। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी के 9 लोग सिर्फ अटेंडेंस देने आए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। When object is placed in front of convex mirror, focal length 15 centimeter, magnification m की वैल्यू 1/4, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इमेज जब ऑब्जेक्ट का 15 सेंटीमीटर पे है, मैग्निफिकेशन उसका 1/4 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? मीन्स यू कहाँ है? यू की वैल्यू नहीं मालूम है, वी की वैल्यू मालूम है कि 15 सेंटीमीटर पे इमेज मिला है, सॉरी फोकल लेंथ मालूम है। ठीक ना, अपने को ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों नहीं मालूम है, सिर्फ फोकल लेंथ मालूम है, 1/f मालूम है और m मालूम है। तो रिलेशन हमने देखा था, रिलेशन क्या था? वन अपॉन एफ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और m इज इक्वल्स टू माइनस v/v। ये दो रिलेशन है, और इसी दोनों की वैल्यू दी हुई है, फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है। यू और वी दिया ही नहीं है, हमको यू और वी फाइंड करना है। 6 answers I have got, 30 seconds left.
टाइम्स अप, लेट्स सी। 8 लोगों ने आंसर दिया है, देखते हैं किसका सही है। u की वैल्यू -45, v की वैल्यू 11.25। एक ने तो सिंपल एक लाइन में खत्म कर दिया, बियॉन्ड सी। फर्स्ट वाला तो कॉपी पेस्ट दिख रहा है। अच्छा, ये करेक्ट हो गया था क्या? चलो, कॉपी पेस्ट यहाँ काम नहीं आएगा, भले ही इसने आधा लिखा है 11.25, इसको मार्क्स मिलेगा। ओके, लेट्स सी लीडर बोर्ड। तरु फर्स्ट, खुशी गौरव सेकंड, अक्षत अर्पित थर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्यूशन F15 दिया है, M1/4 दिया है, इसी से हम एक रिलेशन बनाएंगे v इज इक्वल्स टू -u/4। फिर हम उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे मिरर फॉर्मूला, वहां से u मिल जाएगा। जैसे ही u मिला तो वापस जो यहाँ रिलेशन था v इक्वल्स टू -u/4, उसमें हम वापस एक वैल्यू रखेंगे, आगे आंसर। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कॉपी पे जब आप लिखोगे फ्रैक्शन, यहाँ स्लैश करके दिया है, स्क्रीन पे आपको स्लैश दिख रहा होगा, वो कंफ्यूज कर रहा होगा। कॉपी में जब आप अपॉन में लिखोगे ना, वो बेटर। ये एक रिलेशन था, इसी रिलेशन को u की वैल्यू को इसी रिलेशन में हमने पुट कर दिया। ठीक ना, यहाँ क्या था -u/4, तो -u मतलब कि u की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। और 45/4, तो 45/4 मतलब 45 को 2 बार डिवाइड करना है, या तो फिर 4 से डायरेक्ट डिवाइड करना। जैसे ही हम किए इक्वेशन 1 में, ठीक ना, हमारा v का वैल्यू मिल गया। और यहां पास फिर ये चीज हमको ध्यान देना है कि पॉजिटिव साइन ऑफ v shows that image is formed back of the mirror। तो हम एक फॉर्मूला के तौर पे इसको कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन ऑफ v इज इक्वल्स टू इमेज एट द बैक ऑफ मिरर। ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। राइट फास्ट एंड कमेंट आफ्टर राइटिंग। और वहीं एक और ये देखो, नेगेटिव साइन ऑफ u, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन फ्रंट। ठीक, पॉजिटिव साइन ऑफ v पीछे, नेगेटिव साइन ऑफ u सामने। यहां स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ये पोल है, ठीक ना, POLW हो गया है, पोल है वो। तो टाइप करने में E और W कीबोर्ड में आसपास रहते हैं, उसी वजह से हो गया। Everyone done? Okay. Next we will see about refraction. Okay, next we will see about refraction. So better we will start in next class this one. So till now, and that leaderboard is maintained, आपके ग्रुप में पहुंचेगा, उसमें जो टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट रहेगी, टेंशन मत लो। ठीक ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, आई थिंक हमारी क्लासेस तो डेली है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस रिफ्रैक्शन से कंटिन्यू करेंगे और डेली हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा, ये 2 चीज। तो आज आप फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन बनाओगे, सिर्फ ये 2 चीज से रिलेटेड बनाओ।
ठीक है, क्योंकि ये आपने आज सुबह पढ़ा है तो दिन भर आपको ये चीज याद रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन आज सैंपल पेपर बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ, इन दोनों से रिलेटेड बनाओ। क्लियर?